बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ की बात करेंगे, दैट इज़ म्यूकर माइकोसिस। आजकल काफ़ी सुनने में आ रही है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये डिज़ीज़। पोस्ट कोविड पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई है, उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिल रही है। सो बेसिकली हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इट्स अ ग्रुप ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस विच इज़ कॉज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ म्यूकोरेल्स इन क्लास ज़ाइगोमाइसिटीज़। नाउ देयर इज़ अ क्लास ऑफ फंगस नोन एज द ज़ाइगोमाइसिटीज़। उसके अंदर एक ऑर्डर है म्यूकोरेल्स। पर्टिकुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं म्यूकोरेल्स के अंदर जो म्यूकर माइकोसिस कॉज करते हैं। इट इज़ वेरी हाईली इन्वेजिव एंड रिलेटेंटलेसली प्रोग्रेसिव, रिजल्टिंग इन हायर रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। अगेन वही बात मैं रिपीट करूँगा, ऐसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका ब्लड ग्लाइसेमिक लेवल काफ़ी हाई है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके वर्सन अप होने के। म्यूकोरेल्स के अलावा राइजोपस ओराइजे एंड राइजोपस डेलेमैर भी कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं जो म्यूकर माइकोसिस कॉज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इट इज़ अ म्यूकोरेल। सो दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ एसोसिएटेड विद द म्यूकर माइकोसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने और भी ऑर्गेनिज्म बताए। इस तरह के हाइफल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और इसके स्पोर्स कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते हैं और एक्सपोज होते हैं हम उससे, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर ये एंटर हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसके हाइफे फैले हुए हैं सब जगह। सो बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो म्यूकोरेल्स दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, जिससे ह्यूमंस हर वक्त एक्सपोज होते रहते हैं। ठीक है, ये जो फंजाई है इट कॉजेज इन्फेक्शंस प्राइमरीली इन पेशेंट्स हैविंग डायबिटीज़, in those patients having defects in the phagocytic function because of glucocorticoids, and in those patients having elevated levels of the free iron that supports fungal growth in serum and tissues. पेशेंट्स जिनके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है, उनके अंदर म्यूकोमाइकोसिस प्रिवेल करता है, पर्टिकुलरली द राइनोसेरेब्रल फॉर्म। जैसे जैसे एसिडोसिस प्रोग्रेस करेगा इन पेशेंट्स के अंदर, इट कैन कॉज द डिसोसिएशन ऑफ आयरन फ्रॉम द सीक्वेस्ट्रेटिंग प्रोटीन्स। नाउ दीज सीक्वेस्ट्रेटिंग प्रोटीन्स आर वेरी मच important to provide the immunity, which can result in enhanced fungal survival and its virulency. Hyperglycemia constitutes 4 mechanisms for the contribution of these fungal infections, like hyperglycation of iron sequestrating proteins that disrupting normal iron sequestration. Now iron sequestration is a very important procedure. So hyper iron levels in our blood, it can lead to the fungal infections. And the second one is upregulation of the mammalian receptor GRP78 that binds to mucorales, enables tissue penetration. Now this receptor gets hyperactivated, and because of which the fungal elements, the fungal components can easily penetrate through the cell. Third mechanism is the induction of poorly characterized defects in the phagocytic function. And the fourth one is the enhanced expression of the COT-H. It is a mucorale specific protein that mediates host cell invasion by binding to GRP78. Again, that mammalian receptor is very much important for inhibition, for the activation of that fungal elements, the fungal infections in our body, and penetrating, help it to penetrate our cells. So that is very much important. Now let's talk about some generalized facts, like mucormycosis occurs in patients with the diabetes mellitus. The frequency definitely gets increased up. Solid organs or hematopoietic stem cells transplantation definitely takes part because of immunosuppressive drugs that has to be given after the therapy. Then prolonged neutropenia, lack of neutrophils in the blood, it may rise to
or make prone a person towards the mucormycosis. And of course malignancy, because again some of the agents that are required, the chemotherapeutics, it can compromise your immunity. Then traumatic soil or vegetation exposure, where the fungal elements, the hyphae, could be there. Next point, we're going to talk about the clinical manifestations of mucormycosis. Now there are 6 major clinical syndromes that are associated with mucormycosis. The first one is the rhinoorbital cerebral disease, pulmonary disease, cutaneous disease, gastrointestinal disease, and finally the disseminated and miscellaneous forms of disease. Now I'll try to show the pictures of these complications, these manifestations, so that you can have better understanding what are the possibilities and what it is actually. So आप लोग देख सकते हैं कि ये राइनोऑर्बिटल डिजीज़ के अंदर किस तरह से पेनिट्रेट कर सकता है स्कल के अंदर और ब्लैक अपीयरेंस देता है, जिसको हम ब्लैक फंगस डिजीज़ भी बोलते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल ओवर द फेस, किस तरह से इसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया. बेसिकली जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है उसके बाद यहाँ पर टिश्यू नेक्रोसिस होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से कलर चेंजिंग बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है. अल्टीमेटली ये ब्लैकिश अपीयरेंस आती है, दैट इंडिकेट्स कि जो टिश्यू हैं वो डेड हो चुके हैं. दिस इज़ अ CT स्कैन फॉर द पल्मोनरी कंडीशंस. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पॉइंटेड आउट किया हुआ है, एक पर्टिकुलर मास और एक नॉच लाइक अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इन केस ऑफ पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस. Now this is again a disastrous condition, the cutaneous one, cutaneous mucormycosis. As you can see, the blackening of skin, the hyperpigmentation of skin, which is associated with tissue necrosis, fasciitis and cellulitis. All these are very dangerous conditions because it can lead to tissue death. अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी स्टेराइल साइट से हम कल्चर टेस्ट कर सकते हैं और जिसके अंदर पॉजिटिव मिलने पर हम फॉर श्योर डायग्नोज बना सकते हैं दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फंगल एलिमेंट्स एसोसिएटेड. उसके अलावा बायोप्सी परफॉर्म की जा सकती है जिसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्ज़ाम किया जाता है एंड इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट. सो बायोप्सी के अंदर बेसिकली रिवील होता क्या है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक वाइड थिक वॉल्ड रिबन लाइक एसेप्टेट हाइफल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं विच इंडिकेट्स दैट फंजाई इज इन्वॉल्व इन दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी परफॉर्म किया जाता है टू मेक अ प्रॉपर डायग्नोज एंड CT स्कैन और MRI ऑफ द हेड, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द rhinoorbital disease. Now let's talk about the differential diagnosis. Some other mold infections like aspergillosis, scedosporiosis and fusariosis, they can be associated with this and they are probably the differential diagnosis. Apart from that, entomophthalomycosis and Tolosa Hunt syndrome भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं.